Hello, dear students. I hope you all are very fine today. So, let us continue with our new session. And we'll start with the chapter 9, that is the living organisms, their characteristics and habitats. So, basically, we will try to see what are living organisms first. You have seen so many kinds of, if you look around, अगर आप आपके आजू बाजू देखते हो, so you would see many kinds of different animals, and also you would see different kinds of plants around you. So if you see different kinds of animals and plants around you, and you have to note down, so you can see the table, and if you note down all the plants and animals you see in various region, like in the region, like in the forest, what kinds of animals and plants you see, or on the mountains you would see different kinds of plants and animals, in desert, in the sea, and also some other places might be in the air or some other places inside the earth, like below the earth surface. So you would see various kinds of plants and you would see various kinds of animals near around you. So there is a variety of plants and animals, right? So now if you see in the sea, if you observe the plants and animals, they have different surroundings. They are surrounded with salty water, that is called saline water. So they are surrounded with the saline water, and most of them so what they will use, they will use the air. They need air for breathing, right? So they will use air which is dissolved in the water. So this is about the sea or the plant and animal which live in the sea. Or if we see in the desert, these are two various, like two opposite extreme conditions. In the sea there is water available, a variety of water, but that is saline water, and in desert there is a very little amount of water available, right? So, and also the atmosphere over there is hot, and also it is mostly hot and dry in the daytime, and then it is very cold at the night. So there is difference. So in the desert there is different kinds of the the environment is totally different. So the animals and plants in that region, so what they will live on the desert soil, so the soil which will be very hot, and they will breathe the air, unlike the plants which live in the sea. They will use the air dissolved in water, but these animals in desert will use the direct air from the surrounding. So sea and desert, these two are completely different surroundings, and hence we see different kinds of plants and animals over there. जो डेजर्ट में रह सकते हैं, दे विल लिव इन डेजर्ट, और जो सी में सर्वाइव कर सकते हैं, दे विल बी फाउंड इन द सी. सो दैट इज़ द पॉइंट. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. पहले हम डेजर्ट के एक एनिमल का एक एग्जांपल हम देखेंगे. सो कैमल, विच इज़ वेरी कॉमन एनिमल विच इज़ फाउंड ओवर देयर इन द डेजर्ट. सो what are the adaptations, or how the camel is able to survive in the desert? That camels, they have very long legs which will help to keep their bodies away from the heat of sand. Sand जो है बहुत गर्म हो जाती है, तो वो उनके जो legs है, they are very they are very long, so that उनकी body जो है वो sand से बहुत या surface से बहुत ज़्यादा ऊपर है. So they will not feel that much amount of heat, okay, from the soil. They also excrete very small amount of urine, so that बॉडी में जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो. ओके, सो दैट ओके स्वेट भी नहीं होती है उनको. दे डू नॉट स्वेट, एंड द यूरिनेशन इज़ वेरी लो. द एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, एंड द डंग इज़ सो ड्राई. ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है, तो बॉडी से ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो. सो फॉर दैट they have this characteristics. Now since the camels, they lose very little amount of water from their body, so they can live for many days without the water. You know, camels can live for more days without the water. अभी ये हो गया कैमल का जो रहता है डेजर्ट में. Now let us see a fish which lives in the sea water, that is saline water. So fish, they have slippery scales. The body जो है वो scale से the body has a scale over it, and the scales are slippery. Okay, and these scales protect the fish, and also they help in the easy movement through the water. क्योंकि वो slippery है तो easily वो आगे water के आगे वो जा सकते हैं. Then fishes have flat fins, tails होती है जो उनको direction, मतलब when they swim in the water, so their fins helps it to swim and also to change the direction, right? And hence it also balances the body. Okay, the fins will balance the body in the water. फिर
रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, राइट. सो दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि वो क्या यूज़ करते हैं, एयर विच इज डिजॉल्व इन द वाटर, राइट. देन सो इफ़ वी सी लाइक द कैमल एंड द फिशेस, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए उनके जो बॉडी के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग होते हैं, राइट. ये तो बस हमने 2 एग्जांपल्स देखे. इफ़ वी सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. Okay, so if the atmosphere changes, the surrounding changes, then the body features will also change, right. So we see there are various features. ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो उस एनिमल को या उस प्लांट को उस स्पेसिफिक सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करते हैं, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द प्रेजेंस ऑफ सच स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच enables an organism to live naturally in a place is called as an adaptation. Okay, adaptation जो है वो ऐसे होते हैं कि जो उस एनिमल को उस एनवायरनमेंट में ईजी लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, सो अडेप्टेशंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ऑफ कोर्स इट विल डिफर, जैसे जिस प्लेस में वो रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट द अडेप्टेशंस विल बी डिफरेंट, लाइक वी सॉ इन द फिश एंड द कैमल. एंड the place where an organism lives is called as a habitat. So ये 2 words important है, adaptation and habitat. Habitat क्या है, the place where any animal live or an organism. The place where an organism live is the habitat. और उस place में रहने के लिए उसमें जो specific features होते हैं, the specific characters it has, that is called as the adaptation. Okay, so that is, I hope you have understood. अभी एक ही हैबिटेट में रहने वाला है, जैसे कि डेजर्ट है. डेजर्ट में सिर्फ कैमल नहीं है, और भी एनिमल्स है और भी प्लांट्स है. या फिर सी है, सी में देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इन अ हैबिटेट वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. सो there are basically, if we try to distinguish the habitat, there are basically 2 types of habitat, terrestrial habitat and aquatic habitat. Terrestrial habitat मतलब क्या, land, जो land पे लेते हैं, जो भी plants and animals which live on land, that is called as the terrestrial habitats. और aquatic habitats क्या है, the habitats of plants and animals which live in the water, जो water में रहते हैं वो हो गए aquatic. Okay, तो terrestrial habitat we know the example, like अभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में कभी ग्रासलैंड होती है, कभी माउंटेन्स होते हैं, कभी फॉरेस्ट होता है, ठीक है. सो ये हो गए डिफरेंट हैबिटेट टेरेस्ट्रियल में. फिर एक्वाटिक में इफ यू सी देयर आर लेक्स, देयर माइट बी रिवर्स, देयर माइट बी ओशंस और मेनी मोर. सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट इन विच द एनिमल्स एंड द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स लिव, ओके, विद देयर एडाप्टेशंस. सो वी विल सी नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. अभी एक हैबिटेट है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे एक हैबिटेट है, सपोज डेजर्ट है, ठीक है. तो डेजर्ट में क्या क्या होता है, डेजर्ट में होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. सिंपल, डेजर्ट में आपको क्या क्या मिलता है, यू सी कैमल्स, यू सी कैक्टस और यू सी वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यू सी वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स. ये क्या है, सब लिविंग है, राइट, सब लिविंग है, लाइफ है. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इन्हीं को हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट. और उसके बाद डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में होगी सैंड, राइट, धूल होगी, मिट्टी होगी. सो दैट सैंड, एयर इज देयर, सो दैट इज कॉल्ड एज द अबायोटिक कंपोनेंट. ओके, तो ऐसे हर एक हैबिटेट में अगर आप ये डेजर्ट का मैंने एग्जांपल दिया, इफ़ यू सी इन द ओशन और कुछ भी हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक, कौन सी भी हैबिटेट देखो आप, उसमें देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि सैंड है, रॉक है, एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा. ओके, सो वी विल सी वन काइंड ऑफ हैबिटेट. सपोज फॉर एग्जांपल सनलाइट. सनलाइट जो है कंपोनेंट देखेंगे, सनलाइट बायोटिक है या अबायोटिक है. फिर तो लेट अस सी with the help of an activity. What do we need to do? We have to collect some moong, okay, moong seeds. And those seeds you have to divide into 4 parts. Okay, take 1 part and keep it completely submerged in water. वाटर में सोक करके रख देना है, ठीक है, फॉर 3 to 4 days. उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. फिर द सेकेंड पार्ट ऑफ इट वी हैव टू सोक ऑफ कोर्स इन द वाटर एंड यू हैव टू कीप इट इन द सनी रूम, जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे वो रखना है. फिर थर्ड पार्ट जो है उसको आप सोक करके डार्क किसी रीजन जैसे कबर्ड में रख दो उसको, नो सनलाइट. ओके, एंड देन
जो लास्ट पार्ट है उसको आपको क्या करना है, एकदम कोल्ड सराउंडिंग में रख दो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख दो, ऐसे ही उसको। तो ये 4 हमने देखे, अलग अलग हमने क्या किया, मूंग के सीड्स लिए और उसको अलग अलग कंडीशन में रख दिया। अभी कुछ दिनों के बाद वी टू सी, आपको पता है मूंग को स्प्राउट्स आते हैं, लेकिन ये जो 4 पार्ट्स हमने रखे थे सभी में क्या सेम सेम अमाउंट ऑफ स्प्राउट्स आएंगे? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्प्राउट्स यू विल सी इन वेरियस कंडीशन। तो क्या हो गया, मूंग उसमें स्प्राउट्स आए मतलब वो लिविंग है, ग्रोथ हो रही है मतलब वो लिविंग है। तो लेकिन वो सभी इसमें सेम ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उस पर ये बायोटिक हो गया, उस पर अबायोटिक फैक्टर्स का अफेक्ट होता है। उसको एयर अवेलेबल है कि नहीं, उसको सनलाइट अवेलेबल है कि नहीं। आपने सीखा है प्लांट को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर सॉइल चाहिए। तो ये सब, ये तो नॉन लिविंग है, सब एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, दे आर अबायोटिक कंपोनेंट। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दे बोथ मेक बैलेंस विद ईच अदर. So let us see various habitats, let us learn about various habitats. So first we will see terrestrial habitats, in that we will see desert. डेजर्ट में बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से, मतलब जो सराउंडिंग होता है डेजर्ट में, उसके हिसाब से जो वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या होती है, वेरियस एडाप्टेशंस होती है। तो जैसे डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, अभी कैमल का हमने देख लिया एडाप्टेशन क्या है, लेकिन जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स है, स्नेक्स है, अभी उनमें तो कैमल के जैसे बड़े लेग्स होते नहीं हैं, तो फिर वो जो गर्म होती है सैंड, उससे वो कैसे बचे? So they will make a deep burrow inside the sand. You can see it in the diagram. They make a deep burrow inside the sand and they will live over there, so that they will be saved from heat of the sand. Okay, और वो दिन में वहाँ पे रहते हैं, फिर रात को जैसे थोड़ा एनवायरनमेंट कूल होता है, then they will come out. Okay, देन प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं दे लूज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, क्योंकि उनमें क्या होता है, वाटर की कमी होती है, राइट। सो दे हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट रीजन, सो दे डू नॉट लूज मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, और उनके जो लीव्स होते हैं आपने देखा होगा, तो वो और ऐसे तो एब्सेंट होते हैं, अगर हुए तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो स्पाइन के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। तो जैसे क्योंकि लीव्स से ही वाटर क्या होता है, लूज़ होता है प्लांट से, तो क्योंकि लीव्स से ही वाटर लूज़ होता है, तो इसीलिए लीव्स अगर ना हो या कम साइज़ में हो तो वाटर लूज़ नहीं होगा। ओके, इसीलिए दे हैव दिस अडेप्टेशन। सो यू कैन सी इन द डायग्राम कैक्टस, ओके, सो स्पाइंस होते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होती है इसमें, वो कौन कैरी आउट करता है? लीव्स तो नहीं है, या फिर वो स्पाइन के फॉर्म में है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम विल डू द फोटोसिंथेसिस। स्टेम कैसे होता है? ग्रीन कलर में आपने देखा होगा, तो वो जो से लिफ के जैसे दिखता है हमको कैक्टस में, दैट इज़ एक्चुअली इट्स स्टेम। तो वो उसका अडाप्टेशन है, ठीक है, वो डेजर्ट में रह पाए इसीलिए वो उसका अडाप्टेशन होता है। तो स्टेम ग्रीन कलर का होता है, फ्लैशी होता है, और जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन के फॉर्म में होते हैं। ये सब क्यों है? जस्ट टू रिटेन द वाटर और टू लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसीलिए ये सब उनमें अडाप्टेशन होते हैं। ओके, so we'll just stop over here. I hope you have understood the topic. Just go through it one or twice and you will understand it properly. Okay, by that time you just be safe at home and take care.